Good morning, friends. Welcome to this very special masterclass and happy Independence Day to all of you. On our 75th Independence Day, we pause to take a look at how family businesses, the silent champions of the economy, have been creating value not only in terms of wealth, but also in terms of culture. I am happy to introduce the faculty for today's session, Professor Samish Talal. He is a senior faculty at Global Family Managed Business Program of SPJ School of Global Management, which is one of the topmost business schools in the world. He is a specialist in the field of negotiation, entrepreneurship, and marketing. He is associated with family businesses since many years and has taught more than 4,000 students of family business. In addition to being an MBA from University of Queensland in Australia, he has also attended educational programs in Harvard and Wharton. Professor Samish Talal has played an important role in creating knowledge in family business, and his case studies are world bestsellers. I now invite Professor Samish Talal to take up the session. Oh my goodness, Sujata ma'am, that was a fabulous, fantastic, super introduction to the wonderful day we have today. Super fantastic, Sujata ma'am. All right, guys, a very warm welcome to everyone and a happy Independence Day, and happy Independence Day to every one of you guys. It was a fabulous and fantastic introduction that Sujata ma'am set the tone for today's event. But more importantly, she highlighted a very brilliant point about the family business. And that is something that we're going to keep talking about in this series of every Sunday at 11 o'clock. Okay. Guys, it's been a wonderful day today that we have had the independence celebration of 75th Independence Day. And the flag hoisting and everything happened in the morning at Delhi. And it was a wonderful sight to see. And the idea behind today's session is also on a similar lines. But सबसे पहले सभी दोस्तों को, सभी लोगों को स्वतंत्र दिन का शुभकामनाएं, शुभ दिवस. It was a fantastic thing, guys. सुजाता मैडम AIFMB को रिप्रेजेंट करती है. एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मैनेज बिजनेस. उद्देश्य क्या है? फैमिली बिजनेस के ऊपर हम लोग हर बार कुछ ना कुछ बात करते हैं. आज क्या नया होने वाला है? अरे मैं तो ये सोच रहा था जब दीपल मैडम के साथ पिछले वीक हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे को बोलती सर क्या है सर एक ही टॉपिक को लेके दोबारा. मैं बोला क्या मैडम बात करती हैं, इस बार तो कुछ बात ही हम नहीं करने वाले हैं. क्या बात कर रहे हैं सर, आर यू सीरियस अबाउट इट? मैंने एब्सोल्युटली, क्यों नहीं. एंड क्यों नया टॉपिक ना मिले, क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसके ऊपर अब बात क्यों नहीं कर सकते. सो इस बात को लेके हमने आज का टॉपिक फिक्स किया है गाइस कि 75 इयर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन बाय इंडियन फैमिली बिजनेस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैल्यू क्रिएशन का सीड कहां से जाता है और उसमें AIFMB जैसी संस्थाएं जो नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है उनका रोल क्या है, हमारा और आपका रोल क्या है. Many people might be attending this webinar for the second or the third time. Some people might be attending for the fifth or the sixth time. Maybe some people will be attending for the seventh or the eighth time. Doesn't matter, guys. हम लोग इस वेबिनार के जरिए आप लोग तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे इस विचार को आप तक पहुंचाना चाहते हैं. कुछ लोग को लगे ये रिपीटेड है, कुछ लोग को नया विचार है. पॉइंट नया या रिपीटेड की बात नहीं है. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं. हम सब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, सब लोग. ओके, मैं ट्रेन के ट्रैवल की बात करूंगा तो दीपल मैडम स्क्रीन के पीछे हंसती रहेगी. वो आज सुबह कहीं ट्रैवल करने वाली थी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैंसिल हो गया है. तो ट्रेन में ट्रैवल जरूर करते हैं. तो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास ने हम लोग जब समझो कि सुबह का टाइम है, 7:30-8 बजे ट्रेन में बैठे हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, जैसे ऐसे बैठते हैं पूरा फैमिली 4-5 फ्रेंड्स ऐसा. ओके, अरे इतने एक चाय वाला जाता है, चाय करके अपन देखते हैं, बोले छोड़ने यार अभी तो सुबह चाय पिया था, कितनी चाय पिया. फिर दूसरा चाय वाला जाता है, चाय करते ऐसे 3-4 बार चाय वाला जाता है. तो चौथे चाय वाले पे तो अपन रोक ही देते हैं, ओ भाई साहब चाय चाहिए यार. What was happening, my dear friends? What was happening? Repeated hammering हमारे ऊपर हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन हो गया चाय पीने के लिए. चाय की इंडस्ट्री को तो फायदा हो गया, उस चाय वाले को या पहले वाले चाय वाले को वो पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है. रिपीटेड हैमरिंग का एक उद्देश्य ये है गाइस कि एक विचार फैमिली बिजनेस का ये विचार नहीं है,
ये एक विचार नहीं है, ये एक आंदोलन है। आज के दिन पे इस टाइप की स्पिरिट का होना जरूरी है। आंदोलन, इट्स अ मूवमेंट। परिमल सर बहुत बार बोलते हैं कि इट्स अ मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट दैट इज ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज। और कौन सा चेंज है मैं आपको बताता हूं गाइस। मैंने हमारे डॉक्टर श्रीकांत का बहुत सारा व्हाट यू कैन से ग्लिम्पसेस यू सीन परिमल सर के बहुत सारे ग्लिम्पसेस वी सी इन द वर्क दैट वी हैव बीन डूइंग। इट्स अ मूवमेंट ऑफ चेंज। कौन सा चेंज? एक बहुत पुराना थिंकिंग होता है कि कोई भी पारिवारिक बिजनेस होता है तो उसमें क्या होता है कि सेकंड थर्ड जनरेशन तक बंदा उसमें से ऊब जाता है, बोर हो जाता है। कल ही मिला था मैं एक आदमी को, कल ही मिला था एक आदमी को। वो आदमी बोलता है कि हमारा स्टील का बिजनेस है, लेकिन मेरे बेटे को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है तो हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहता है। स्टील का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहता है। मैंने उनको हंसते हंसते एक सिंपल सी चीज बोली, सर आपके ही बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला क्यों? मैं बोला देखिए सर, सिंपल सी बात है, आपका भी तो स्टील का बिजनेस है, कई सालों से आप स्टील का बिजनेस कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा यूनिट है, उसमें कैंटीन रखो और कैंटीन में आप हॉस्पिटैलिटी, आपके बच्चे का योगदान उसमें लाओ। पर अपने फैमिली बिजनेस से अलग क्यों कर रहे हो? 2 4 5 10 साल अपना बच्चा उसमें जाए, अपने आप को उसमें प्रूव करे और उसके बाद इनफ पैसा हो जाता है, डाइवर्सिफाई, इन्वेस्ट इनटू अनदर बिजनेस व्हिच कुड बी हॉस्पिटैलिटी, व्हिच कुड बी होटल, व्हिच कुड बी रेस्टोरेंट, आई डोंट नो व्हाट। बट सोचो इस तरह से कि गाइस, हमारी जो ताकत है उसमें हर व्यक्ति को जुड़ते रहना चाहिए। ये मोमेंटम है, ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ फॉर आवर ओन बिजनेस, फॉर आवर ओन नेशन। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐसे अपने बच्चों को बोलते हैं, जा बेटा तेरे को जो ठीक लगे वो कर ले। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो यंग है, वो शायद दिशा नहीं मालूम है, उसको ये नहीं मालूम है कि जो ठीक है कर ले। बहुत बार हमको दिशा देनी पड़ती है। पानी को बोला जाए कि जिस दिशा में मन चाहे बहे, तो हर जगह पे तूफान आ जाएगा, हर जगह पे फ्लड आ जाएगा। पानी को भी चैनलाइज करना पड़ता है। बिजली के तार को बिजली में से बिजली को तार में से पास करना पड़ता है। उसको छोड़ देंगे तो करंट शॉर्ट लग जाएगा हम सबको। हर एक एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है। आज का युवा धन, अवर यंगस्टर्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। योर सन्स और डॉटर्स, ऑल द यंगर पीपल इन द वर्ल्ड। मैं 15 साल के ऊपर के हर बच्चे को इस यंग की कैटेगरी में डाल देता हूं, जिसके में जबरदस्त ताकत है। मतलब बाइक पे कन्याकुमारी से कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, ये लोग इतनी ताकत रखते हैं जिसका मैं और आप अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस ताकत को चैनलाइज करना चाहिए। तेरे को जो ठीक लगे वो करो, अच्छी लाइन है, 100% अच्छी लाइन है, लेकिन ऐसा बोलते बोलते हम शायद उसको एकदम ओपन तो नहीं कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कर देते कि फिर वो शायद 5-10 साल के बाद हमारे पास फिर आ जाता और बोलता है, अरे अब मैं क्या करूं पप्पा, अब मैं क्या करूं चाचा, अब मैं क्या करूं दादा। ऐसा करके तो नहीं आ जाता है। थिंक गाइस, यंगस्टर्स, ये हमारा बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी हमारी एसेट है, एंड उसको इस फैमिली बिजनेस में चैनलाइज करना चाहिए। यदि उसकी कोई भी ताकत है, कोई भी ताकत है, लेके आ जाओ। नाउ माय पॉइंट टू द बच्चा लोग, मैं समझता हूं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ओपन। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं यहां पे बैठा हूं, मैं फॉरेन जाके करूंगा तो कुछ अच्छा करूंगा, मैं ये बिजनेस में जाके करूंगा तो अच्छा करूंगा। मेरे को ना कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हंसते हंसते, सर मेरा बिजनेस है ना टेक्सटाइल का है, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक मल्टीनेशनल को ज्वाइन करूं, मेरे को काम करने का तरीका सीखने को मिलेगा। अरे बेटा, तेरे को काम करने का तरीका नहीं मिलेगा, तेरे को शायद एक छोटे से प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा बनने को मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तेरे यहाँ टेक्सटाइल का है ना, तो तेरे को ये भी मालूम है कि यान कहां से आता है, यान में कितना वेस्टेज होता है, यान में कितना लोग क्या कहते हैं गड़बड़ करते हैं, उसका वेइंग कैसे होता है, उसमें पानी डाल के वजन को कैसे बढ़ाया जाता है, डाइंग कैसे होता है, पूरा प्रोसेस तेरे को मालूम पड़ेगा 100%। लेकिन सोच ले, कोई बड़ी कंपनी में काम करना शुरू कर दे तो इतू से पार्ट में तू क्या सीखेगा? तेरे को बोलेंगे यू आर सपोज टू लुक आफ्टर द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब तेरे पास पेपर आया, पेपर पे 4-5 टिक मार किया, आगे चला गया, तू वहीं बैठा रहेगा। तेरे को लगा तू कितना बड़ा काम कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है। अरे कहीं और जाके क्यों सीखो, अपने ही फैमिली बिजनेस में सीखो, क्योंकि अपना है। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर कितना मिलेगा सैलरी। मतलब सैलरी क्यों चाहिए, धंधा तेरा है,
तू 2-4 हजार, 5, 10, 15, 20 हजार की बात करता है, बेटा तेरे लिए करोड़ों का धंधा तेरे पास है। अरे अपने सैलरी छोड़, कितना पोटेंशियल है वो देख। एंड यदि ऐसी नजर अपन डेवलप करते हैं, सही अर्थ में फैमिली मैनेज बिजनेस को हमने रियली इंडिपेंडेंट बनाया है, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लचेस, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लचेस ऑफ द बिग विग्स ऑफ द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ जॉब एक्सेट्रा। हाँ सच कह रहा हूं, हमारे पारिवारिक बिजनेस जकड़ गए हैं, लोगों के ऐसे तानों में जकड़ गए हैं, लोगों के ऐसे विचारों में जकड़ गए। अरे भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, इसके में जकड़ गए हैं। इस जकड़ से छोड़ो, इनको बाहर निकालो, इंडिपेंडेंट करो। एंड दैट इज द रियल सोल, रियल थिंग अबाउट इंडिपेंडेंस। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोग नहीं करते, करना चाहिए, बाकी लोग भी बहुत प्रयत्न करते हैं। एंड मैं ऐसा कोई भी पॉइंट पे ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि पीपल आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट। देयर आर टू मेनी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में काम कर रही है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मैनेज बिजनेस इसमें अग्रसर तरीके से काम करती है। आपका कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन है, एंड इफ दे वांट टू बिकम ए पार्टनर विद AIFMB, आप सुजाता रॉय मैडम को रीच आउट कर सकते हैं जब कभी भी मन करे। जब कभी भी मन करे उनको रीच आउट कर सकते हैं। तो आप उनका संपर्क करके और भी सारे एसोसिएशन में इस तरह के इवेंट करवाइए जहां पे फैमिली बिजनेस के डेवलपमेंट की बात करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक अभी एक जनरेशन में ऐसा हो जाता है कि भाई ठीक है चलो हम लोग ने तो बिजनेस बना दिया, अभी हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो हम यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। गुड आइडिया है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डाइवर्सिफाई अभी तक नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा रोक दिया है। वहां पे जैसे जैसे ग्रोथ आएगा तो हमको भी थोड़ा उसमें से लाभ मिलते रहेगा। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड फैमिली बिजनेस का, इंडिपेंडेंस के दिन पे आज बात करने का। तो एनीवेज गाइस, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मैनेज बिजनेस एज आई सेड इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो इस तरह के इवेंट्स को करता है, वन ऑफ देम बीइंग टुडे। बट आज के दिन का मेरा क्या कहते हैं, विषय तो कुछ और ही है ना। 75 साल, 75 साल, 75 years, not a small number, buddy, not a small number। मतलब यदि हमारे फादर का होता है, आपके फादर का होता है, हम उसको जाके कहीं जाके सेलिब्रेट करते हैं, गोवा चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 75 years को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये डिस्कशन हमारा पिछले एक वीक से हो रहा था, तब जाके इस इवेंट का निर्माण हुआ है कि गाइस इसके सेलिब्रेशन के लिए दो चीज बनती है, दो चीज। वैल्यू वर्ड को समझा जाए तो फैमिली बिजनेस आज से नहीं है गाइस, आज से नहीं है, और ये 75 years से भी नहीं है, उससे पहले है और उससे कई सालों से है। मतलब एक नवसारी छोटा सा जगह गुजरात में, वहां से एक बंदा बॉम्बे आके बिजनेस शुरू करता है। आप सबको शायद ये नाम मालूम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप हो गया है। चैट बॉक्स में कोई बंदा टाइप करना चाहे तो कर सकता है, मैं कौन से ग्रुप का जिक्र कर रहा हूं। नवसारी गुजरात से एक छोटा सा व्यक्ति, एक लड़का बॉम्बे आता है और एक बिजनेस ग्रुप शुरू करता है, और आज की तारीख में वो बिजनेस ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप बन चुका है, क्रिएटिंग ह्यूज वेल्थ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द नेशन। और ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, किसी ने टाइप नहीं किया। आई थिंक पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि कौन सा ग्रुप हो सकता है, एंड आर मे बी नॉट सर्टेन कि कौन सा ग्रुप है। उसका नाम टी से स्टार्ट होता है। आई मीन आई एम श्योर दैट्स अ वेरी बिग क्लू फॉर एवरीबॉडी हु इज इन द ऑडियंस राइट नाउ। ओके गाइस, बहुत सिंपल है, दैट्स द Tatas I'm talking about. वेल्थ क्रिएशन वहां से स्टार्ट हुआ है, एंड somebody has written that रतन टाटा, it's not only रतन टाटा सर, उस वक्त की बात है, वो जमशेद जी नसरवान जी टाटा की बात कर रहे थे, पर करेक्ट है, टाटा वर्ड आ गया तो बहुत हो गया। पॉइंट यहां पे ये नहीं है कि राइट रॉन्ग करा जाए, पॉइंट यहां पे ये है कि 75 years हम कौन से वैल्यू की बात करते हैं, कौन से वैल्यू की, wealth as a value या value as a value? Guys, look at me guys, confused? Let me help you clarify. Wealth as a value यानी कि we talk about people जो billionaires इंडिया में हो गए। अभी मैं परसों पढ़ रहा था, फोर्ब्स में आता है 10 बिलियनियर ऑफ इंडिया, 21 बिलियनियर ऑफ इंडिया, इतने बिलियनियर ऑफ इंडिया। वाओ, that's good to know। बट क्या फैमिली बिजनेसेस ने सिर्फ इस तरह के बिलियनियर्स ही बनाए हैं? कभी अंबानी का नाम आता है, कभी अडानी का नाम आता है, कभी इसका नाम आता है, कभी उसका नाम आता है। मेरा पॉइंट उनसे अगेंस्ट है ही नहीं।
मेरा पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि क्या हम लोग उसी को वैल्यू बोलते हैं? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम वैल्यू नहीं बोलते हैं, वैल्यू कुछ और है। और हम उस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं जो फैमिली बिजनेस ने कई सालों की परिश्रम मेहनत से, अनगिनत अटेम्प्ट से उस वैल्यू को बनाया है। एंड द फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 पॉइंट्स। और अब 4 पॉइंट्स का पहला पॉइंट एजेंडा आज के दिन का है, एंड दैट इज कॉल्ड कल्चर, संस्कृति, कल्चर। कोई आता है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, कोई मेरा स्टूडेंट होता है तो वो स्टूडेंट अपने फ्रेंड के फादर को मिलता है, ऑटोमेटिकली उसके पैर हाथ नीचे चले जाते हैं पैर को टच करने के लिए। इट डजंट मैटर विद द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है, एक सहज स्वभाव से वो झुक जाता है। नहीं देखता है कि वो एयरपोर्ट पे है, रेलवे स्टेशन पे है, ऑफिस में है, कहां पे, ऐसा झुक जाता है। फिर वो बंदा उसको गले लगा लेता है, नहीं बेटा तुम बता अभी कहां, मतलब प्लीज गले लगो, एंड वो आशीर्वाद उसको दे देता है। Who taught this as a culture? मेरे घर में बड़ा मजा आता है। मेरे दो नेव्यू हैं, तो शुरुआत में क्या करते थे कि वो आके मेरे को ऐसा हाथ मिलाते थे, हेलो फूफा जी हाउ आर यू, ऐसा करके हाथ मिलाते हैं, बोला पैर छुओ, ओके। अब मेरा बेटा मेरे को बोलता है, क्योंकि वो उनसे बड़ा है, मेरे को बोलता है डैडी ये फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं बोला फोर्स नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं है, वो मेरे को छुए नहीं छुए, मेरे को तो दिल के करीब है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि वो दूसरों को जब मिलेंगे तो वो एक हैबिट होनी चाहिए। उनको बोलते हैं इसका मीनिंग क्या है? बेटा मैंने कभी पूछा नहीं मेरे पापा को, शायद मेरी गलती है, लेकिन मेरे पापा को मैंने उनके पापा को करते हुए देखा है, तो मैं उनको नेचुरली फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने हंसते हंसते ये भी बोल दिया, तो बेटा वैसे देखा जाए तो जो पॉजिटिव थिंग टू इट, बोलता है क्या? बोला एटलीस्ट पूरे दिन में 2-4 बार झुकेंगे तो पेट की कसरत भी तो हो जाएगी। हंसने लगा। देयर कुड बी अ केमिकल रिएक्शन जिसके कारण जब आप ऐसे करते हैं तो, एंड मोर इंपॉर्टेंटली गाइस, यदि सामने वाले के सामने इस तरह से बो डाउन करते हैं और उसके 4 आशीष, 4 ब्लेसिंग अपने को मिल गए, तो उसमें हार्म क्या है यार? व्हाट इज द हार्म इन इट? गलती क्या है, गलत क्या है? पर छोटी सी चीज जो फुल टाइम इसको देखने को मिला है मुझे फैमिली बिजनेसेस के कल्चर में, एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। ऑफिस जाते हैं, पहले देव पूजा करते हैं, जूते निकाल के ऑफिस के अंदर पैर रखते हैं। Huge number of practices are being done by family businesses, which are an element of the culture that have been followed by us. क्या हमारे से कोई किसी और को सीखना? हम यदि किसी और से सीखते हैं तो हमारे से किसी और को सीखना भी उतना ही जरूरी है। बर्थडे पे केक काटते हैं, गुड आइडिया। रात को पार्टी करने जाते हैं, गुड आइडिया, नथिंग रॉन्ग इन इट। मतलब मैंने कभी वेस्ट में देख लिया कि लोग विटामिन्स लेते हैं, मतलब विटामिन उस टाइप की दवा है जिनको कभी शायद जरूरत होती नहीं, फिर भी लेना चाहिए, समथिंग टू योर बॉडी। वैसा देखते देखते इंडिया में भी, मतलब अपने यहाँ भी लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया, हम भी विटामिन लेना शुरू करें। बाकी हमारे यहाँ पहले विटामिन का कभी कोई ऐसा हिसाब ही नहीं था। मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। पिछले 10-15 साल में ये विटामिन एक्सेट्रा का बहुत ट्रेंड आने लगा, उसके पहले कभी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि लगा कि ठीक है यार, अपने खाने में ही अच्छा है, मतलब अपने खाने में हींग आ जाती है, अपने खाने में अलग अलग टाइप के स्पाइसेस आ जाते हैं, जिसके कारण अपने गैस, कब्ज, एसिडिटी वगैरह का तो इलाज है, तो अपने को कुछ जरूरत ही नहीं है, अपने वैसे ही फिट हो जाते हैं, देसी घी खाते हैं। और हमने उनका कुछ अनुकरण किया, कॉपी किया, गलत नहीं है। जिनको कॉपी करना था करो, जिनको नहीं करना वो भी नहीं करो, दैट्स ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिसीजन गाइस। हमारी चीज उनको हम कितनी देते हैं, इसका कभी पृथक्करण किया है? इसका कभी पृथक्करण किया है? मतलब फादर किसी का आता है, हेलो मिस्टर पटेल, हेलो मिस्टर शाह, हेलो मिस्टर परिक, ऐसा करके क्या हम ग्रीट करते हैं? पापा जी, अंकल जी, ये वो, मौसा जी, फूफा जी, एक्सेट्रा, ऐसा करके हम ग्रीट करते हैं। तो क्या हमने वो उनको ट्रांसफर किया है? क्या वो हमने उनको पहुंचाया है? क्या वो विचार हमने उधर तक रीच कराया है? कराओ, अब कराओ गाइस, अब कराओ। क्योंकि कल्चर वहां से यदि वहां से यहां हम लेके आ सकते हैं, तो हमारा कल्चर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन कल्चर है, बहुत बेहतरीन कल्चर है।
ये कल्चर खराब नहीं है, इसका गौरव होना चाहिए हमारे पास, इसका कोई ना कोई तरीके से प्रिजर्वेशन होना चाहिए. Let people know that this culture has a longevity. It has come because of over a period of time. बहुत बार इसके रीजनिंग में चले जाते हैं. 500,000 किताबें होएगी, इंटरनेट पे आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्यों पैर छूना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए, कल को नया घर रखने जाते हो तो उसमें कुंभकड़ा होना चाहिए. ये सब बहुत सारे उसके नियम बन चुके होंगे. पहले कोई साइंटिफिक रीजन भी होगा, और अपने टाइम साइंटिफिक रीजन चला गया होगा, तो कल्चर के साथ उसको फिट करके लोगों को हैबिट में घुसा दिया. यदि खराब होता तो शायद खराब है, नहीं यार खराब नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है. फैमिली बिजनेसेस इन कल्चर्स को टिकाने में आज भी सक्षम हैं और कर रहे हैं. मेरा सैल्यूट है हर फैमिली बिजनेस को और हर उस पेट्रियार्क को, हर उस मेट्रियार्क को जिसने इस कल्चर को कंटिन्यू करने में लोगों की मदद की है. पर जो लोग नहीं कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है, अनुरोध नहीं समझते तो मेरा ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर नहीं तो यार एक दोस्ती रिक्वेस्ट ही समझ लो कि करो गाइस, करो. यदि फैमिली की एक लीगेसी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथी पीढ़ी तक जाना है तो कल्चर को फॉलो करना चाहिए. एक भाई साहब को मिला 55 का, उसका एल्डर ब्रदर 57 का. वो 57 वाले को थोड़ा चीजें पसंद नहीं थी, पर ये 55 वाले ने कभी उसके सामने आर्ग्यू नहीं किया. मैंने बोला आप उनको बताते नहीं? नहीं सर, वो बड़े भाई हैं, 2 साल तो 2 साल बड़े तो है नहीं. वो अमान्य रखने का, उनको जो चीज पसंद नहीं है कोई बात नहीं, तो हम कभी और तरीके से करेंगे. वो अमान्य रखनी चाहिए, वो अमान्य रख. आई मीन इमेजिन दैट रिस्पेक्ट हैज टू हैपन. इमेजिन दिस. ये फैमिली में कीड़ा घुस नहीं सकता है, इस फैमिली दूषण घुस नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि वो बंदे ने कोई ना कोई तरीके से अपने कल्चर को, एंड वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं. बड़े पापा बोले चुप, पर पापा एक पर सुन, अपनी बात रखने की है तो 1 to 1 जाके उनको अकेले में समझाओ, ये बात अलग है, लेकिन सबके सामने ने चुप. ओके, चुप बोला, चुप हो गया. गजब, गजब. एंड दैट इज नॉट, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी. मेनी टाइम्स मुझे मेरे फादर से ऐसा हो जाता है कि डैडी आप गलत हो, मेरे चाचा से मेरे को ऐसा हो जाता है गलत हो. आई मीन मैं और मेरे चाचा के बीच में डिफरेंस शायद 20 साल का है, मेरे पापा के साथ में डिफरेंस 30 साल का है. पर ये होता है, बहुत बार ऐसा होता है, होता है. पर उसके कारण क्या मैं उनके साथ डिसोन कर लेता हूं? नहीं यार, डिफरेंस है, डिफरेंस है, लेकिन अल्टीमेटली वो फादर है मेरे. उनके कारण मेरा अस्तित्व है, उनके कारण मेरे अंदर जीव है, मेरी मां के कारण जीव है. एंड यदि उस कल्चर को यदि अपन फॉलो नहीं कर सकते, निभा नहीं सकते हैं, तो आई थिंक हम एनिमलिस्टिक लाइफ जीते हैं. सोचो. एंड बाय द वे गाइस, मैं उपदेश की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट गिविंग ज्ञान गॉस्पेल. I'm talking the real culture that our family businesses have been following over the years. I am just bringing it out on a wonderful day today. 75 years of simply harnessing value of family business. जबरदस्त काम किया है, जबरदस्त. And that is my first submission to every one of you guys. Culture, संस्कृति टिका के रखने के लिए, बचा के रखने के लिए, उसके लिए कमिट रहने के लिए. मतलब मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे समाज में लोग तिलक करके जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, एंड फिर दूसरे लोग स्टूपिड पीपल. आई मीन व्हाट यार, अरे स्टूपिड पीपल नहीं है वो, उसका स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है, उसका स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है, वो स्ट्रॉन्ग उस चीज में बिलीव करता है. मैं यहां भगवान, आस्था, फिलॉसफी एक्सेट्रा की बात नहीं करता हूं. बहुत सिंपल सी चीज है. हमारे एक रिलेटिव है, वो लोग नॉर्मली घर में अंडा वगैरह खाते हैं, पर आज उसके घर में कुछ कुंभकड़ा रखने का था, उसके घर में कुछ दिया बत्ती का कुछ प्रोग्राम था, तो उसकी वाइफ को बोला कि चल सुबह नाश्ता कर लेते, क्विक नाश्ता, एक अंडा खा लेते हैं. उसने बोला आज नहीं खाऊंगी. क्यों? क्योंकि आज प्रभु के सामने खड़े रहना है. दैट्स फाइन. डज शी नो द रीजन व्हाई? डज शी नो द फिलॉसफी व्हाई? डज शी नो एनी लॉजिक ऑन दैट? आस्क हर. शी डजंट नो दैट गाइस, ट्रस्ट मी. लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि वो मैडम ने उस चीज को फॉलो किया है.
उस चीज को फॉलो किया है। हो सकता है कि उसके फादर या उसके फादर को उसने करते देखा, यानी कि उसके ग्रैंड फादर को करते देखा, ग्रैंड मदर को करते देखा है और शी इज डूइंग इट। The culture is something that just goes on from one generation to another to another. And guys, trust me, एक लाइन को ध्यान से सुनो। Guys, look at me, please look at me, please look at me. एक लाइन को ध्यान से सुनो। Your kids will do what you do, they will not do what you say. Your kids will do what you do, they will not do what you say. Your kids will do what you do, your kids will not do what you say. मैं कभी गुस्सा हो जाता हूं, गाड़ी फास्ट चला लिया, मेरा बेटा मेरे पीछे देख रहा है, वो भी शायद ऐसा करेगा। मैंने गुस्सा हो कि कुछ ऐसा गलत कर दिया तो वो भी करेगा, क्योंकि वो देख रहा है। एट द सेम टाइम यदि मेरी वाइफ गिर जाती, मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं उसके साथ खड़े रहता हूं, उसको सपोर्ट करता हूं, वो भी वो देखेगा। हर चीज को देखता है और फिर वो अनुकरण करेगा उसका। तो सेम चीज फैमिली में है। यंग कपल्स जो फादर मदर बन जाते हैं, मेरा उनको कहने का है, तुम्हारा बच्चा 2 साल का होता है तो भी वो देखता है कि मेरे मम्मी पापा कैसे बात करते हैं, गुस्सा होकर बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, एग्रेस होकर बात करते हैं या शांति से बात करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, 2 साल 3 साल के बच्चे की जो टेप होती है उसके ऊपर लिखा जा रहा है, एंड वही कल्चर मान लेगा, वही कल्चर मान लेगा, उसके लिए वही संस्कृति है, वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे सब कुछ है। You can't smoke in front of your kids and then tell them not to smoke. Correct. You can and they will, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उनको छुड़वाना चाहते हो, उनसे बंद करवाना चाहते हो, खुद बंद करना पड़ेगा। हाँ, अपने बच्चे में कहीं समाज से आदत हो गई तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, और उसके लिए मेरे को ऐसा मालूम नहीं है कोई हथकंडा या तरीका जिसको मैं छुड़वा सकता हूं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट लार्जली ऐसा होता है कि यदि ऐसा करने का है, टिका के रखो गाइस, कल्चर को बचा के रखो। फैमिली बिजनेस ये हमारी सबसे बड़ी मूडी है। 75 साल हुए हैं, अनदर 75 साल, 150 साल की जब इंडिपेंडेंस की बात आएगी तो ये 110% हमारे लिए काम की चीज होने वाली है। मैं नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहोगे, यहां 100%। हम में से जितने भी अभी स्क्रीन पे हैं, कोई नहीं रहने वाला, हम सब मर जाएंगे, गारंटीड है, हम सब नहीं रहने वाले। आप में से कोई 22 का होगा, बोले सर 75, तो मैं 97 का जिंदा रहूंगा। जिंदा रहो तो ठीक है, नहीं रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन एक चीज रहेगी गाइस, एंड वो है कि हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, हमारी तहजीब रहेगी, और उसको रहनी भी चाहिए। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम उसके गार्डियंस बनके टिकाने की कोशिश करेंगे, एंड दोज गार्डियंस का नाम एक्चुअली है फैमिली बिजनेस। उस गार्डियन का नाम ही फैमिली बिजनेस। आप लोग को लगेगा सर आप घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं, और कोई तरीका है तो बता दीजिएगा, इस और कोई तरीका है तो बता दीजिए, और कोई प्लेटफॉर्म है तो बता दीजिए। अरे ये दुनिया के, इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो उसके नीचे जितने एम्प्लॉयज हैं उनमें भी ये विचार डाल सकते हैं। परसों मैं अपने स्टूडेंट के यहाँ था, जैसे ही स्टाफ ने एंट्री लिया, स्टाफ ने दरवाजा खोला, मतलब स्टाफ जैसे आया, सब स्टाफ वाले उनको जय श्री कृष्ण विश कर रहे थे। मैं उसको देख के बोल रहा हूँ माय गुडनेस, जब मैं इसको स्टूडेंट कैपेसिटी में देखा तो कभी ऐसा विश नहीं करता था। कुछ बात निकली तो मेरे को एक लाइन में बोलता है कि सर ठाकुर जी की बड़ी मेहरबानी है, थिंग्स आर गोइंग ऑन एक्सीलेंट। ठाकुर जी की मेहरबानी, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? ब्लडी 4 साल पहले तो तू ऐसा कभी था नहीं, बट हुआ है, हुआ है, यहीं पे होगा। और यही गार्डियंस, यही फैमिली मैनेज बिजनेसेस उस कल्चर की रक्षा भी करेंगे और आगे भी लेके जाएंगे। 75 साल से करते आएंगे और भी करते रहेंगे। हमने ही ये 75 साल में इसी वैल्यू सिस्टम को बनाया है। सो वी हैव क्रिएटेड वैल्यू फॉर वैल्यू। वेल्थ एज अ वैल्यू बराबर है, लेकिन वैल्यू एज अ वैल्यू भी है, और आज हम वैल्यू एज अ वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो ये मेरा फर्स्ट सबमिशन होता है, कल्चर। मेरा दूसरा सबमिशन होता है लर्न टू फॉरगो। लर्न टू फॉरगो। फैमिली बिजनेस में कब हमको हमारी चीज को छोड़ते थोड़ा आगे बढ़े, छोड़ दोगे तो और आगे बढ़ सकोगे।
देयर वाज ए पर्सन वेरी इंटरेस्टिंग। एक बंदा मेरे को मिलता है, मेरे को बोलता है समीश भाई मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं। तो बोलो, आपको पता है मेरा स्टैंडर्ड क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? मतलब क्या है? मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मेरे बिना इधर पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं हंस रहा था। मेरे को बोलता है समीश भाई हंस क्यों रहे हो? तो भाई साहब यदि आपके बिना यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, इसका मतलब पता है क्या? बोलता है क्या? इसका मतलब आप प्रमोट भी नहीं हो सकते, आप डिमोट भी नहीं हो सकते, आप इधर ही पूरी जिंदगी काट लोगे। ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं था। करेक्ट, क्योंकि तुमको हिला ही नहीं सकता है। बट यू आर एट दिस स्टेज, यू कैन गो अप, यू कैन गो डाउन, यू आर गुड हियर ओनली। अरे तुम तो 110% यूजलेस हो गए हो। क्यों? क्योंकि यहां पे जो काम है, जिस दिन पे ये काम खत्म हो गया, तेरा काम क्या रहेगा? तेरा काम क्या रहेगा? कोई बंदा बोलता है सर मैं क्वालिटी कंट्रोल में बैठा हूं, जहां पे मैं बैठा हूं यहां से कोई भी डस्ट, कोई भी गड़बड़ पास नहीं हो सकती। समझो उस दिन कंपनी ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, लेट्स डू सम ऑटोमेशन, क्योंकि थोड़ा और भी बेटर कर सकते हैं। ऐसा करके ऑटोमेशन लेके आए। भाई साहब का रोल क्या रहा? ओ भाई साहब का रोल क्या रहा? यूजलेस। लेकिन मान लो यदि वही बंदा क्वालिटी कंट्रोल पे है, कोई नया रिक्रूट आता है, अरे नया बंदा आया, अरे डिपल मैडम आप नहीं आए हैं, ठीक है मैं आपको क्यों से सिखाता हूं। उसने सिखा दिया, वो बंदा आगे निकल गया। कल को दीपल मैडम किसी और को सिखाती है, अरे मैडम आपने उसको सिखा दिया, आप आगे निकल जाओगे। द मोमेंट यू कीप ऑन गोइंग फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर, आप ऑटोमेटिकली दूसरों को सिखा के आगे निकल जाते हो। उसको बोलते लर्न टू फॉरगो, आगे निकल जाओ, छोड़ दो, छोड़ना सीखो। इतना पकड़ के रखेंगे गाइस 110% पॉसिबल नहीं होगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम फैमिली बिजनेस सिखाती रही है। पहली पीढ़ी ने बनाया, जैसे ही सेकंड जनरेशन आया, पहली पीढ़ी ने बरोबर देखा सही कर रहा है, नए तौर तरीके अप्लाई कर रहा है। हमने तो कभी हैदराबाद से बाहर कोई दुकान सोची ही नहीं थी। देखो ये तो कहाँ देके गया है, वाइजैक लेके गया, त्रिचपल्ली लेके गया। वाह वेरी नाइस। बेटा अभी आप संभालो, जैसे आप संभाल रहे हो संभालो, अच्छा ही संभाल रहे हो। ग्रैंडफादर आउट हो गए, वो बंदे ने संभालना शुरू किया। उसका चचेरा भाई आता है, भाई आई थिंक एक्सपोर्ट करना चाहिए, करो मैं आपके साथ हूं, जितना कर सकते हैं साथ में करेंगे, बाद में आप टेक ओवर कर लेना, उसको और कंटिन्यू करना। एक्सपोर्ट चालू हो गया। उतने में एक फूफा जी का लड़का आ गया, बोलता है मामा मुझे ना ये करना है। करो बेटा, अभी अपने को तो मालूम नहीं है, हमने कभी इसको ऑनलाइन बिजनेस किया ही नहीं, एंड ऑनलाइन तुम चालू करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके एक काम करो, ऑनलाइन के साथ साथ तुम मेरा भी संभाल लेना, आगे चल के तुम ये कंटिन्यू करना, मैं कुछ और कर लूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा। छोड़ते आए, छोड़ते आए। एंड ये जो छोड़ते आए हैं ना गाइस, इसके कारण हुआ क्या है कि फैमिली बिजनेस अपने आप ग्रो होते रहे हैं, अपने आप ग्रो होते रहे। उनको किसी को बता, nobody had to come and tell him grow, they just kept on growing inorganically, they kept on growing। कभी कभार ताकत मिली तो ऑर्गेनिकली ग्रो किए, पर ग्रो करते रहे, अपने आप ग्रो करते रहे, अपने आप डेवलपमेंट होता रहा। घर का कोई परिवार का बंदा जुड़ता गया, ग्रो करते रहे, खुद की ताकत के हिसाब से ग्रो करते, लेकिन करते रहे बिना कोई सोच, बिना कोई रोक, बिना कोई टोक। कभी कभार गलतियां हुई, उस गलती से सीखा। कोई मेंटर रख लिया तो मेंटर ने उनको गाइड कर दिया, तो उस हिसाब से चालू कर दिया। लेकिन गाइस द ग्रोथ हैज हैपेंड, एंड यही लोग हैं जिन्होंने इस लेवल पे ग्रोथ लेके गए हैं। ट्रस्ट मी गाइस, द रियल एलिमेंट इज लर्न टू फॉरगो। कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है, अलाउ करो। क्या होगा यार, मतलब हमारा वो लेके चला जाएगा? नहीं, हमारा कुछ नहीं लेके जाएगा। जो तुम्हारा वे तुम्हारा रहेगा, तुमने बनाया है। नाउ लेट समबडी एल्स डू समथिंग एंड मेक देम डू बेटर। उनको और अच्छा करने की प्रेरणा दो। पारिवारिक बिजनेस में यदि किसी और को अच्छा करने की प्रेरणा दोगे तो तुम धीरे धीरे फ्री हो जाओगे। वो बंदा अच्छा काम करेगा, आगे चल के वो किसी और को सिखा सकता है, तो तुम और भी बड़ा काम कर सकते हो, और भी बड़ा काम कर सकते हो। मेरे को इधर से कोई हिला नहीं सकता। ये लाइन सच बताऊं तो इतनी घटिया है, इतनी घटिया। लोगों बड़े प्राइड से बोलते हैं अपन यहाँ के राजा, अपने को हिला भाई तू इधर का राजा है, तो इसका मतलब कि कल के दूसरे दूसरे बड़े राज्य बनेंगे ना तो तू उधर का ही राजा रहेगा। अरे भाई मैं तो सिर्फ छोटा सा सिपाही हूं, आज राजा बन गया हूं, कल फिर तंत्री बन जाऊंगा, कल फिर संतरी बन जाऊंगा, कल मेरे को बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि मैं कहीं और जाके राजा बनना चाहता हूं। दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। लर्न, छोड़ दो,
छोड़ दो। 75 सालों में फैमिली बिजनेसेस ने बहुत कुछ छोड़ दिया है। उन्होंने ये छोड़ने की क्वालिटी के कारण उनके बाद की जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन सीखती आई है, सीखती आई है। एक जमाना हुआ करता था, मेरे ग्रैंडफादर कोई डिसीजन लेते थे, मेरे फादर आ गए तो उन्होंने डिसीजन लेना शुरू कर दिया, पहले 4 डिसीजन गलत हो गए। मेरे ग्रैंडफादर ने कभी कान मरोड़ा भी होगा, मैंने कभी देखा नहीं। अभी सुनने अवसर होता अपने बाप का, अपने फादर का, ग्रैंडफादर जब कान मरोड़ते थे मैं भी उनको बोलता हा हा हा, मेरा आप मरोड़ते थे, अभी देखो आपका भी हो रहा है। लेकिन वो अवसर मेरे को कभी देखने को मिला नहीं। पर किया होगा ना, मेरे फादर ने मेरा किया। पर दैट्स ओके यार, गलती की है, गुनाह तो नहीं किया है, हो गया। गेट इट बेटर, यू विल डू इट एंड समडे यू विल डेफिनेटली डू बेटर जॉब। एक भाई साहब है, हमारा एक दूसरा चैनल है जहां पे ग्रूमिंग डॉटर्स में एक कहानी आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। एक फादर ने अपनी बेटी को फॉरेन बिजनेस करने जाने के लिए अनुमति दे दी, यानी कि परमिशन दे दिया। द मोमेंट परमिशन वाज गिवन, देयर आर पीपल टेलिंग यार अकेली जाएगी तो बड़ा डेंजरस नहीं हो जाएगा? कोई डेंजर नहीं होएगा, कोई डेंजर नहीं होएगा, मैं रस्सी हाथ में रखूंगा, उसको जाने दूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जाएगी जाएगी, मेरे को लगा कि प्रॉब्लम है तो मैं खींच लूंगा, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो करने दूंगा। हम सब ने अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया है। पहले हैंडल यूं पकड़ते थे, बच्चा साइकिल चलाता था, उसको लग रहा मेरे फादर मेरी मदर पीछे दौड़ रही हैं, धीरे से हमने हाथ छोड़ दिया, फिर भी हम दौड़ते रहते, उनको लग रहा है अरे वाह वेरी गुड सपोर्ट। बाद में हम दोनों हाथ ऐसे दिखाते थे, और तेरी देन दब के गिर गए, दैट्स फाइन, उसको मालूम है कि चलेगा। हमारे यहाँ इवेंट होते हैं उड़ान करके, बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं उनको बोलता हूं कि करो, अपने हिसाब से डिजाइन करो, कहीं गलती हो गई तो अपन निकाल लेंगे बाहर, लेकिन तब तक उनको करने तो दो। गेट आउट ऑफ इट गाइस, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम गेट आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं कि आज सुबह किया धंधा शुरू और शाम को निकल गए उसके बाहर, नहीं, उसको एक लेवल पे लेके आओ, उसको एक सर्टेन स्टेज पे लेके आओ, उसको एक सर्टेन क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे लेके आओ जहां पे वो अपने आप चल सकता है। अपने आप चल सकता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट गाइस। छोड़ दो, एंड छोड़ोगे तो कुछ नया पकड़ने की तैयारी भी तो रखोगे। नया कुछ लेना नहीं है तो छोड़ोगे तो फिर नया मिलेगा कि बोलते ना अपन, माय हैंड्स आर फुल, इफ माय हैंड्स आर फुल देन हाउ एम आई गोइंग टू ग्रास्प समथिंग न्यू? थिंक इफ माय हैंड्स आर फुल हाउ एम आई गोइंग टू ग्रास्प समथिंग न्यू? मतलब मैं जब कहीं नई जगह पे जाता हूं मेरे को कुछ नया जानने को मिलता है, पर मैं पुराना चीज को पकड़ के रखा है तो फिर नया छोड़ दे तो नया प्राप्त करने का मजा आएगा। एंड सच बताऊं गाइस, नएपन का मजा है ना हर उम्र पे है, 17 पे है या 70 पे है, 17 पे है या 70 पे है। मतलब मेरे एक फूफा जी हैं, हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया था इस लॉकडाउन के दौरान टू एक्ट लाइक सम कैरेक्टर इन ए मूवी, एंड ही डिड एक्टिंग ऑफ बागबान। तो उन्होंने एक कैमरा को अपना फ्लिप करके रखा, फिर अपना खुद का उसमें शूट किया, और फिर उन्होंने जब क्लिपिंग मेरे पास भेजा ना तो मैंने परिमल सर के साथ शेयर किया कि सर लुक एट दिस। मेरे को बोलते हैं कि गजब। मैं बोला सर कभी सोचा भी नहीं था कि फुआ ऐसा कर पाएंगे, कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज जब मैं ये देखता हूं मेरे को लगता है कि मैन ही इज एट दैट लेवल ऑफ लर्निंग, दैट लेवल ऑफ लर्निंग, आई मीन अमेज्ड। गरबा का सीजन था, माय मदर इज अ बिग शौकीन ऑफ गरबा, बड़ी शौकीन है, लेकिन नहीं जा सकते थे पब्लिक में गरबा करने के, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे। तो घर में उसमें और मेरे डैड ने जिस तरह से गरबा किया बड़ा अमेजिंग है। मेरे चाचा आज की तारीख में हर गणपति पे अलग अलग तरीके से लोगों को साथ में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सब साथ में मिलकर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो सब लोग मिलेंगे, जुलेंगे, मजा करेंगे। बट 65 एंड 65 कीप डूइंग न्यू, दैट्स द आइडिया गाइस। छोड़ दोगे तो कुछ नया प्राप्त करने की तैयारी मिलेगी, पुराना पकड़ के रखोगे तो नया प्राप्त हो ही नहीं सकता है। दिल्ली से मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, वो मेरे को बोलती, मेरे फादर बोलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंट क्या है उसको भी मैं ही सिखा दूंगा, इनकम टैक्स वाला क्या है उसको भी मैं ही सिखा दूंगा, अरे सुबह का ऑफिस का शटर भी मैं ही खोलूंगा, शटर भी मैं ही बंद करूंगा। अरे भाई साहब सब कुछ आप ही करोगे तो आपका प्यून सेट हो गया, समझे लॉजिकली? क्योंकि प्यून घर से क्या बोल के निकलेगा,
हमारा सेठ दरवाजा खोलेगा तब मैं पहुंचूंगा, आज सेठ नहीं आया तो दरवाजा नहीं खुलेगा, तो मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा, शांति से खड़ा रहूंगा, चाय पीऊंगा, मावा खाऊंगा, स्टोरी खत्म हो गई। थिंक, हकीकत है। हमने छोड़ा ही नहीं, हमने छोड़ा ही नहीं। छोड़ना सीखो गाइस, एंड ये हुआ है। सीखो वर्ड गलत हो जाता है, छोड़ना तो फैमिली बिजनेसेस ने छोड़ना सीखा है, एंड इसके कारण यहां तक पहुंचे हैं। और मैं जानता हूं कि अगले 75 साल भी पहुंचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली बिजनेस में ये क्वालिटी है, द क्वालिटी टू लीव, बट लीव आफ्टर मेंटोरिंग, लीव आफ्टर द अदर पर्सन हैज रियलाइज्ड, लीव आफ्टर द अदर पर्सन हैज लर्नड द लेसन। दैट इज द इंपॉर्टेंट point. So that is my second submission, guys, कि learn to leave the things the way they are, छोड़ देना चाहिए। मेरा last and final submission, pay attention guys, very very important, everybody just look at me guys, pay attention, just look at me, just look at me। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग इसको फ्यूचर में देखने वाले हैं, जितने भी लोग शायद मेरे बाद भी देखने वाले हैं, मैं दो हाथ जोड़ के आपको एक नम्र विनती करता हूं, पूरे साल में 4 दिन ऐसे होने चाहिए जिसको आप फैमिली डे बनाओ। 4 दिन, क्योंकि ये जो आपके वैल्यूज हैं ना, उसको आगे ले जाने के आपके पास यही 4 मौके हैं। 1 मिनट, ये फैमिली डे का मैं आपको मीनिंग बता दूं, उसके बाद आप मेरे ऊपर बात करना। पहले 4 दिन ये कमिट करो। 4 दिन फैमिली डे का मतलब ये नहीं है कि आप खाली अपने फैमिली के साथ टाइम निकालो। आपके 4 फैमिली डे के 4 मीनिंग है मेरे। पहला फैमिली डे, यदि आप में से कोई भी नोट्स बना रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि इस नोट्स को आगे शेयर करा जाए। यदि आप में से कोई भी इसका नोट कर रहा है तो जरूरी है कि इसको शेयर करा जाए। पहला फैमिली डे, आपके खुद के परिवार के लोग पूरे साल में 1 या 2 बार मिलने चाहिए, पर मैंने 1 बार मिनिमम बोल दिया। मैं जानता हूं हमारे एक सबीना मैडम है, वो पूरे साल में अपने फैमिली के साथ 2-4 दिन के लिए पिकनिक वगैरह जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ गुड थिंग। और ऐसे मैं उनका नाम नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, अच्छा है, करो। पर वो एक पार्ट हुआ। दूसरा फैमिली डे, हाँ मैं जानता था ये आप लोग को लगा कि चारों चार का सेम ही होने वाला है, नहीं। दूसरा फैमिली डे, अपने एम्प्लॉइज को एक दिन बुलाओ विथ फैमिली इन योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, और उस दिन फैमिली डे मनाओ। हाँ, उस दिन फैमिली डे मनाओ। उस दिन पे उनसे एक्टिविटी करवाओ, उनके बच्चों को शामिल करवाओ, छोटे मोटे अवार्ड रिवॉर्ड का प्रोग्राम रखो, छोटा मोटा सेलिब्रेशन रखो। धंधे की बात मत करो, पैसे की बात मत करो, सिर्फ और सिर्फ आनंद खुशी की बात करो। सिर्फ और सिर्फ आइस ब्रेकर यानी कि लोगों के साथ काम कराने की कोई ना कोई चेष्टा करो, एक्टिविटी करो। मैं से बहुत सारे अपने बच्चों के कंपनीज के फैमिली डे में गया हूं जहां पर उन्होंने एम्प्लॉय को भी परिवार बुलाया है। और मैं सच बताऊं, जिन बच्चों ने मेरे को बुलाया है ना, मैं उनका आज दिल से शुक्रगुजार हूं। आई एम थैंकफुल टू देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट यू इनवाइटेड मी टू सच प्लेसेस। क्योंकि जब आपने अपने पूरे एम्प्लॉइज को विद फैमिली बुलाया है, जब आप यहां से अपने एम्प्लॉइज के साथ बात करते हैं, अपने एम्प्लॉय को वहां पे कोई करंट से रिवॉर्ड मिलता है, उसके बच्चे को कोई करंट से रिवॉर्ड मिलता है, उसकी वाइफ को कोई करंट से रिवॉर्ड मिलता है, जो तालियों का जो पूरा जो एटमॉस्फेयर खड़ा हो जाता है, जो इको होता है, ये कंपनी अपनी कंपनी है, ये सेठ अपना सेठ है, मैं इस कंपनी का हूं। बिलोंगिंगनेस का जो जज्बा खड़ा हो जाएगा इज एज मच एज द जज्बा दैट यू हैव फॉर योर ओन नेशन, फॉर योर फैमिली। फैमिली डे खाली अपने परिवार का नहीं, वो एक हो गया। दूसरा फैमिली डे होता है एम्प्लॉय को साथ में लेके उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाओ। अभी आप बोलेंगे कि सर कोरोना काल में थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। मेरे मदर को स्ट्रोक हुआ अभी थोड़े समय पहले, तकलीफ हुआ था,
फिर हम लोग गए थे। फिर एक दिन हमने चाचा को बोला कि हम लोग 4 दिन के लिए मम्मी को और आप सब साथ में चलिए। तो वो आए, मेरा कजिन ब्रदर है वो आया, पूरा फैमिली आया। फिर उन लोग का एक एल्डर लोगों का ग्रुप है, वो भी एक दिन उनको लेके साथ में चले गए। इमेजिन कि क्या हो रहा है, किस तरह से फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए लगे। ये फैमिली डे का सेलिब्रेशन है गाइस। बिना वजह, बिना कोई कारण से साथ में रहो। So anyways, that was first part. Second part was for the employee वाला। एम्प्लॉय में वो एलिमेंट इतना रिलेटेड नहीं था, लेकिन याद आ गया तो मैंने शेयर कर दिया। थर्ड, फैमिली डे। हो सके ये जबकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो कुछ गिने चुने कस्टमर्स को परिवार के साथ आमंत्रित करिए। यदि बहुत ज्यादा नहीं है तो साल में 1-2 बार डीलर मीट, कस्टमर मीट वगैरह करते हैं, तो उनको अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, मतलब यदि उनका बेटा बेटी है, ऐसा कुछ है तो साथ में बुलाइए, पर बुलाइए जरूर। एसोसिएशन की मीटिंग में लोग आते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से लोगों को इतना नहीं बुलाते हैं। बुलाइए। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशंस उनको ट्रांसफर होने चाहिए, और वो वाइब्रेशंस एकजुट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी तो नॉर्मली एक फैमिली बिजनेस होता है, और आप भी फैमिली बिजनेस है। वो फैमिली बिजनेस नहीं, यदि कोई बड़ी कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी, एम्प्लॉय, मुलाजिम है, तो दैट पर्सन इज स्टिल बॉन्डेड टू यू। तो बंदे को एटलीस्ट एक फैमिली कल्चर का फीलिंग आएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारा वैल्यू वो है माय डियर फ्रेंड्स कि हम दूसरों के लिए इतना सब करते हैं जिसके कारण ये जरूरी हो जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल जो फैमिली डे होना चाहिए वो है डेवलपमेंटल फैमिली डे। इन द इंडियन कैलेंडर सिस्टम, आई एम श्योर इट वुड बी द सेम इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। इन द इंडियन कैलेंडर सिस्टम कुछ कुछ दिन होते हैं जिसको हिंदी में पितृपक्ष कहा जाता है। इज द डे व्हेन यू रिमेंबर योर एंसेस्टर्स जो उस दिन गुजर गए हैं, उस तिथि पे या ऐसा कुछ। ऐसा बहुत बार ऐसा मैंने लोगों को सुनते हुए देखा कि आज मेरे मदर की तिथि है, आज मेरे फादर की तिथि है, आज मेरे ग्रैंडफादर की तिथि है। उस दिन मिलते हैं, थोड़ा बहुत प्रेयर करते हैं, और फिर अपने रास्ते पे चले जाते हैं। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। प्रेयर वेयर करके क्या निकाल लोगे? वो करते रहो पूरे साल जो कर रहे थे। उस दिन पे इकट्ठा हो, टेक अप 1 or 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंसेस्टर, और उसके लास्ट पर्सन का जो कनेक्टिंग लिंक है, उस व्यक्ति को बोलो कि आज हमको समझाओ कि हमारे दादा का या परदादा की कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट था जो बहुत ही वंडरफुल था, जो हमारे में इम्बाइब होना चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज की तारीख में हमारे घर में जब भी कभी श्राद्ध होता है, श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष होता है, तब हमारे घर में इस चीज का कोई ना कोई एक एल्डर व्यक्ति शेयर करता है स्टोरी की। तुमको पता है जब तुम दादा 40 की उम्र के थे ने, मतलब मेरे पापा, मतलब माय फादर वुड शेयर हिज स्टोरी अबाउट हिज फादर व्हिच इज माय ग्रैंडफादर। तो तुमको पता है कि एक बार ऐसा हुआ था, और इस घटना को पूरा वर्णन करेंगे, एंड वी लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट। गाइस, ट्रस्ट मी, जो वो लीगेसी है ना वो कोई किताब में है, ना कोई आज तक उसको डॉक्यूमेंट कर पाया है, ना कहीं पे वो प्रिस्क्राइब्ड है। इतना टैसिट है, इतना टैसिट है, इतना टैसिट है। एक जनरेशन चला जाएगा ना, वो चीज भी चली जाएगी। एक जनरेशन चला जाएगा, वो चीज भी चली जाएगी। फिर चला कुछ भी कर लोगे ना तुम्हारा गूगल, ना तुम्हारा इंटरनेट, ना तुम्हारा कोई भी चीज ढूंढ पाएगा। इस लॉकडाउन में आई वॉज एबल टू फाइंड आउट द ऑडियो क्लिप, द वॉइस ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे डैड ने को सुनाया। मेरे डैड मेरे को बोलते हैं किसी भी हालत में ये डिलीट नहीं होना चाहिए, दिस विल बी रिमेनिंग विद मी फॉर लाइफ। मतलब आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए है। इमेजिन वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट।
my son will listen to the voice of the father of his grandfather, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर का आवाज सुनेगा। बहुत जरूरी है। आवाज के साथ साथ वो विचार सुनेगा कि उस वक्त उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनका विचार क्या था। फैमिली डेवलपमेंटल डे, टेकिंग द लीगेसी फॉरवर्ड, वो चीज टैसिट है, समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि आगे लेके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा चीज होगा। In 2017 and 2016, there was one experiment which I and Parimal sir did with one family. There was in 2016, I did one experiment with one family on a similar lines of taking legacy forward. The objective is very simple. कि जो वो जनरेशन है जिन्होंने अपने जमाने में कुछ किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं राइट था कि रॉन्ग था, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्यों किया था, और यदि हमारे पास कुछ उसमें से लेसन लेने को है तो आर वी अडॉप्टिंग एनी लेसन फ्रॉम दैट? इफ यस, good. If no, why we are not adopting? Why can't we adopt that lesson? That's the only idea, guys. That is the true spirit of creating value of a family business, guys. 75 सालों में पारिवारिक बिजनेस ने इतना सारा मूल क्रिएट किया है, इतना सारा वैल्यू क्रिएट किया है, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जिसका कोई माप नहीं है, जिसका कोई और तोड़ नहीं है। The only thing that's going to go with all of us is the simply values that we have had from one generation to another, another generation to the another. If we can cultivate this, if we can develop this, if we can harness this, it will be the best thing ever that we have done so far in our entire life, and we can say in our journey of growth and journey of our independence. On this wonderful day of 15th August 2021, I wish everyone once again a happy Independence Day, and I wish everyone to be the torch bearer, to be the supporter of family business and the family business movement. As I said, starting with it, Asian Institute of Family Managed Business is a not-for-profit institution जो इस कार्य में जबरदस्त प्रेरित हैं, जबरदस्त काम करती हैं, and इसी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। At the GFMB program, we make sure that with every passing year, more and more family values and family culture is given to the students by virtue of different interactions, sessions through our students, participants, etc. हम बहुत बार अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, वो लोग आके कोई ना कोई एड्रेस करते हैं, different business people, etc. And at the end of it, they still talk about the value system that the families have developed over a period of time. With those words, guys, I wish you all the best. Have a great time. Have a brilliant day of celebration. It's a national festival today. I wish everybody a great time today and all the best. Good luck, guys. Thank you very much for sparing your wonderful Sunday and also a holiday. Thank you and have a great time.